Hello everyone, good morning. Am I audible to all of you? So this is your first class for zoology. Already our started classes for botany. So this is our first class. So let me introduce myself Rakesh Madhu, and I'm going to take your zoology part. And I believe you all are newly admitted, just passed out. You have just completed your 10th, and you all are aspiring to be a doctor. That's why you have joined PCB, right? Yes, good morning to all of you. Good morning. Good morning. So today we will have a small introduction. So I can see only 28 participants. I heard almost 50 students are there. What is the strength of your class right now? How many students are there? I've already switched on your mic. If anyone want to talk, they can switch on their mic and talk. And because of some technical issue today, I think you're not able to see my face. Tomorrow I will make sure that you can see my face as well. So for one day you can adjust. 30 students. So let us wait for 2 more minutes. Maybe other people will join. And let me inform you all that this week I will take all your classes. That is a whole week I will take the class. And from next week, Monday, Tuesday, Wednesday will be taken by Kalyan sir. Thursday, Friday, Saturday will my class. We'll have your my classes. 3-day Kalyan sir, 3-day my class. Okay. कितने लोग आ गए? 38. चलो अब मुझे बताओ मैं जो स्क्रीन शेयर किया आपको दिख रहा है कि नहीं? Can you see this? Can you see the photograph on your screen? Is it visible? Yes. Good. Okay. Till now 39 students I can see. So I'll wait for some more minutes. So the first chapter, what we're going to discuss in zoology, that is animal kingdom. So we'll discuss animal kingdom in the first chapter. Good morning. Again, good morning to all of you.
So Vivek is asking, sir, do you need to make any separate notebook for zoology and botany? Yes, definitely you need to make separate notebook for botany, separate for zoology. दोनों का अलग अलग बनाना है. You have to make separate note. चलो 50 लोग हो गए ऑलमोस्ट 49. So you all are having you have already cleared class 10th ना most of you. CBSE का एग्जाम तो हुआ नहीं अभी तक 10th का, क्या हो गया? You all got promoted. What is the status? आपका एग्जाम हो गया सबका? अच्छा, एग्जाम नहीं हुआ. So अभी तक चलो एवरीवन इज गॉट प्रोमोटेड ना. 10 से प्रमोट हो गया ना सबका. चलो, so you are now in class 11 officially. Good, very good. Now how many of you ever heard about animal kingdom? क्लास 8 9 में तो पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के बारे में. क्या है एनिमल किंगडम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? गुड. एनिमल किंगडम, सर एनिमल्स, वेरी गुड. You think you are animal? You are animal? You think you are animal? All of you? Yes. No. Someone says saying no also. You don't believe you are not animal. Suraj is saying no, sir, I am not animal. Then Suraj, what are you? You are plant or fungus or bacteria? क्या हो तुम? बताओ सूरज. तुमने नो बोला ना. हाँ, सूरज. अनीथा शिंदे. ह्यूमन बीइंग. अच्छा, तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग एनिमल है कि प्लांट है? बताओ. एनिमल. तो तुम भी एनिमल हुए ना. तो हम सब एनिमल है कि नहीं? We all are animal, right? Yes, we all belong to animal kingdom. यहीं पे तो पढ़ने वाले हैं हम. So there are many different types of animal in this world. बहुत बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स है हमारे दुनिया में. जैसे आप प्लांट के बारे में पढ़ते हैं वैसे ही एनिमल भी बहुत वैरायटीज होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं. तो हम इस पहले चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. पहला हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल स्टडी. लेट मी डिस्कस. एक मिनट. देखो, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रहा है आपको मैं जो लिख रहा हूं? एनिमल किंगडम, देखो मैंने लिखा एनिमल किंगडम. दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर. द वर्ड एनिमल मीन्स मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, ऑल दी एनिमल्स. ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम नहीं बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं. ठीक है. सो ऑल एनिमल वी विल डिस्कस वन बाय वन. अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, देखो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी. दैट क्लास इज ऑलरेडी स्टार्टेड. सो आई बिलीव यू नो that on what basis we differentiate and we classify different organisms in different groups.
आपने तो पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, थोड़ा तो आइडिया होगा। अच्छा एक बात बताओ, हम आपकी अगर मान लो आपकी क्लास में, इन योर क्लास there are 50 students. Now all the 15 students are same or different? All the 50 students are different or same? They are different, right? So what we can do, we can categorize or we can classify the students according to or on the basis of different criteria. अब देखो, अगर हमें किसी भी क्लास को डिवाइड करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको अगर सब मतलब उसमें हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो हम बहुत अलग अलग तरह से कर सकते हैं। लेट अस टेक सम क्राइटेरिया। नंबर 1, मान लो मार्क्स के बेसिस में कर सकते हैं कि इस क्लास में किसको कितना नंबर आता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस में हम क्लास को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसको सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे नाम, उसके बाद वाले जो बच्चे हैं उनका नाम रखेंगे। ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा है अटेंडेंस, ठीक है, दूसरा है अटेंडेंस। तो कौन सा बच्चा कितना दिन आता है, कौन सा बच्चा क्लास कितना करता है, उसके बेसिस में भी हम स्टूडेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 3, डिसिप्लिन। कौन सा बच्चा कितना डिसिप्लिन है, कौन सा बच्चा कितना डिसिप्लिन नहीं है, उसके बेसिस में भी हम बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। वी कैन डू इट, राइट? यस। तो सेम वे यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया कि मैंने आपके क्लास को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। वैसे ही हम एनिमल्स को भी, दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं, एक एनिमल थोड़ी ना होगा, दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स है ना। तो सारे एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिर्फ एक ग्रुप में, या उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस के क्राइटेरिया के ऊपर हम उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। So depends on the characteristic feature of the animal, depends on the different criteria, we can categorize the animal in different groups. ठीक है? So in the entire biosphere, in the entire animal world, we can categorize the animal in different categories on the basis of criteria. ठीक है? On the basis of criteria. ठीक है? तो यहाँ पे हम एनिमल किंगडम इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको अभी, let me go back and show you some slides. So I believe you can see this. देखो दुनिया में कितने तरह के एनिमल्स हैं। So what we can do, we can categorize the animal according to their, according to the categories, according to the different criteria. Just give me 1 minute. Yeah. So you can see, can you see this slide? Slide दिख रहा है ना? Yes. तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको समझाऊंगा, थोड़ा सा क्लियरली समझो उसका कॉन्सेप्ट। So what happens, what I said, that there are different animals with different structures and forms. ठीक है? दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका फूड हैबिट अलग है, उसका हैबिटेट अलग है, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है? तो हमने क्या किया कि सबको, अच्छा क्लासिफिकेशन का क्या जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई? कैन एनीवन टेल मी? हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्या जरूरत है, पर्पस क्या है? फॉर सिस्टमेटिक स्टडी, या बेसिकली फॉर आवर कन्वीनियंस, to make it more easy, more logical,
अब मान लो कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, I believe by this time most of you have visited library at least once in your life minimum. ठीक है, लाइब्रेरी में तो पक्का गए हो आप लोग। तो जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो उसमें देखना अलग अलग सेक्शंस होता है। लिटरेचर का अलग सेक्शन, साइंस का अलग सेक्शन, फिक्शन का अलग सेक्शन, उसमें भी लैंग्वेज का भी अलग सेक्शन होता है, हिंदी का अलग सेक्शन, इंग्लिश का अलग सेक्शन, मराठी का अलग सेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्यों ऐसा करते हैं? मान लो कि मुझे एक किताब चाहिए जिस किताब का नाम है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, मान लो। अब लाइब्रेरियन में जाकर आप पूछोगे मुझे ये वाला किताब चाहिए, तो लाइब्रेरियन आपसे पूछेगा क्या किताब, मतलब बुक कौन सी है, कौन से लैंग्वेज में, सबसे पहले वो पूछेगा। तो बोलेगा, आप बोलोगे इंग्लिश। उसके बाद वो पूछेगा कि आप ये जो किताब है वो फिक्शन है या लिटरेरी है या साइंस बुक है, कौन सा बुक है? तो आप बोलोगे एक फिक्शन है, एक नॉवेल है। तो फिर वो बोलेगा फिक्शन इंग्लिश नॉवेल का सेक्शन वहां पे है, वहां जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, वहां पे एक एक करके बुक ढूंढोगे, आपको फाइनली मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बुक्स को भी हमने क्लासिफाई किया, उसको अरेंज किया है लॉजिकली, अकॉर्डिंग टू इट्स लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। ठीक है, तो हमने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस में हमने बुक्स को अलग अलग किया है। ठीक है, तो वैसे ही हम एनिमल्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर इजी इजी अंडरस्टैंडिंग, एंड फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। मान लो आपके क्लास में अगर 5 बच्चा है और उस सारे 5 बच्चों का नाम राकेश है। ठीक है, मेरा भी नाम राकेश है। ठीक है, तो सारे बच्चों का नाम राकेश है, मतलब सारे बच्चों में से 5 बच्चों का नाम राकेश है। अगर मैं अभी क्लास में जाकर बोलूंगा राकेश तो सब लोग आ जाएंगे। तो अभी कोई भी क्लासिफिकेशन हमने किया नहीं है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, रोल नंबर दे देते हैं। अभी मैं रोल नंबर के हिसाब से बोलूंगा तो जिसका जो रोल नंबर है वो अभी खड़ा हो जाएगा या फिर वो आ जाएगा, है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पर्पस समझ में आया कि हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन। इसका पर्पस होता है फॉर आवर ओन कन्वीनियंस टू स्टडी द थिंग्स इन अ लॉजिकल मैनर। सो द क्लासिफिकेशन हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अब मान लो कि एक तो हम उसको अच्छे से उसको अरेंज कर दिया है, हमने हमने सारे एनिमल ग्रुप को उसके क्राइटेरिया के बेसिस पे ऊपर, क्राइटेरिया मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ध्यान देना, हम एनिमल के बीच में सिमिलैरिटीज भी देखते हैं और डिसिमिलैरिटीज भी देखते हैं। दोनों के बेसिस में हम उसको ग्रुप करते हैं। आपने पढ़ा होगा फाइलम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन का आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में शुरू में, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज देखते हैं और डिसिमिलैरिटीज दोनों देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड द डिसिमिलैरिटीज वी ग्रुप द एनिमल इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, अब मान लो कल को हमें कोई एक नया स्पीसीज मिल गया, एक नया एनिमल हमें मिला। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस एनिमल को हम कौन से ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, उसको रखने में भी हमें हेल्प होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही जो भी क्राइटेरिया है, जो लॉजिकल पैटर्न्स है, जो लॉजिकल प्रोसेस है, उसको हमने उसको डिटरमाइन कर लिया, हमने उसको प्रैक्टिस करके, उसको स्टडी करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको हमने फिक्स कर लिया। तो कोई भी एनिमल होगा हमको हमको मिल जाएगा, तो हम उसको पहले स्टडी करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कौन से का मतलब ग्रुप में ये बेस्ट फिट होता है, हम उसको उस ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, चलो। Now, in spite of differences in structure and forms of the different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature, coelom, then pattern of digestive system, circulatory system, reproductive system. तो ये सारा क्राइटेरिया है। हम जब किसी भी एनिमल को कैटेगराइज करते हैं हम, तो ये सारा क्राइटेरिया हम देखते हैं। क्या क्या देखते हैं कि एनिमल वो बना किससे, कितने सेल से, सिंगल मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, उस सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, टिश्यू है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, हम वो देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होता है कि बॉडी को डिवाइड करेंगे अगर एक सेंट्रल एक्सिस से, तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होता है, क्या हम उसे डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, सिमेट्री है या नहीं है, वो भी हम देखते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया है, एक एक करके देखो, हम सब डिस्कस करेंगे। बॉडी में
सीलोम है कि नहीं, सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी, अभी पढ़ेंगे सब हम आगे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, सर्कुलेशन कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ये सारा क्राइटेरिया और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे आगे। ये सारे क्राइटेरिया के बेसिस में हम एनिमल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, जिस द ब्रांच ऑफ साइंस विच एक्चुअली डील्स विद द क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। So what is taxonomy? Taxonomy is the branch of science which deals with the study of nomenclature, classification, and principle of classification. और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये टैक्सोनॉमी है, इसके फादर हम किसको मानते हैं, या फादर ऑफ जो जूलॉजी है, इसको हम किसको मानते हैं, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी. He was a person who first time who tried to arrange the or classify the animal according to their different characters, and he published a book, and the name of the book was Historia Animalium. That was the book, and that is why we consider him as the father of zoology. So अगर क्वेश्चन आएगा कि who is considered as the father of zoology, Aristotle. ठीक है. चलो, अब देखो एरिस्टोटल ने क्या किया, शुरू में तो उनके पास उतना नॉलेज या उनके पास उतना साइंस उतना एडवांस तब था नहीं, तो उस समय उनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनके उसको उन्होंने यूज किया, और उन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड द एनिमल इन इन सम कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द ब्लड. ठीक है, उन्होंने ब्रॉडली एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ब्लड के कलर के हिसाब से. पहला है एनीमिया, मतलब, और एनीमिया बोल सकते हैं हम इसको, एनीमिया बोल सकते हैं, नॉट एनीमिया, इट इज एनीमा मतलब those animals they do not have RBC और रेड ब्लड सेल. जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उसको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया, और जो एनिमल जिसके पास रेड ब्लड सेल है उसको उन्होंने एक दूसरे ग्रुप में डाल दिया. तो एनिमल which are having the red blood cell, they are known as anemia. Animals who are having the red blood cell, they are known as eneमा. एनीमा मतलब जो भी एनिमल जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उसको उन्होंने क्या कहा, एनीमा. जिसके पास ब्लड सेल है उसको उन्होंने कहा ईनीमा. अभी जो ईनीमा है, he divided the ईनीमा in again two groups. One is ओविपैरा, another one is your विविपैरा. ओविपैरा मतलब they give birth to their young ones, example mammals, and विविपैरा means animals which lay eggs. जैसा आपने देखा है, आपको पता होगा, रेप्टाइल्स, एप्स, एम्फीबियंस, पीसेस मतलब फिशेस की बात करें, फिशेस को हम पीसेस बोलते हैं. ठीक है, एम्फीबियन भी एक ग्रुप है, रेप्टाइल्स भी एक ग्रुप है, एप्स भी एक ग्रुप है, सब हम आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी. यहां तक हमने जो भी डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ. अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसके ऊपर. If anyone is having any query. ओविपैरा एंड विविपैरा का मतलब मैंने बताया. ओविपैरा मतलब एनिमल्स हु एक्चुअली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, मतलब अंडे देने वाले, और जो अंडे नहीं यंग वंस को जन्म देते हैं, जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं ओविपैरस. और जो अंडे देते हैं जो एनिमल, फिर अंडे से जो यंग वंस निकलते हैं बाद में, उनको हम कहते हैं विविपैरस. डोंट वरी, मैं नोट्स आप सबको दे दूंगा. आप लोगों ने नोट्स लिखा क्या? প্লাস্টিকের জিনিস বিক্রি করছে.
नोट्स किसी लिए लिखा गया? ओके, ठीक है ठीक है, टैक्सोनॉमी को मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ओवी पैरा मतलब बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, मैंने गलत बोला। ओवी पैरा मतलब होगा जो अंडे देते हैं, और विवी पैरा मतलब जो होता है जो यंग वंस को जन्म देते हैं। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। नाउ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अभी सुनाई दे रहा है? या देखो, टैक्सोनॉमी, किसी ने बोला सर टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन एक बार दिखा दो। तो देखो, टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ देख सकते हो आप लोग, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हम जब किसी भी एनिमल्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, टैक्सोनॉमी मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया, इसको जब हम ग्रुप करते हैं, इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं इसके अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस में, सो और हम इसको जब क्लासिफाई करते हैं, लॉजिकली करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे मन किया वैसे कर दिया हमने, ऐसे नहीं कर सकते। तो जो the branch of science which actually deals with these, like the criteria to actually make the criterias and principle of classification, ये सब जिसमें बनता है, जिस जिस सब्जेक्ट पे हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम ये पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्लियर है? अभी अभी कोई डाउट है? ओविपैरिटी भी क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट है तो बोलो। दिनेश पूछ रहा है सर, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर फॉर zoology? देयर आर मेनी चैप्टर्स। बता देता हूं, सुन लो। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, उसके बाद जूलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है। शंकर, या शंकर, आई कैन सी योर नेम, शंकर दिनेश वाघ। चलो, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, उसमें अभी कॉकरोच रहेगा, एनिमल टिश्यू में हम कॉकरोच भी पढ़ेंगे। अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं है, सिलेबस से हट गया है, तो वो नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, बड़ा यूनिट है और सबसे डिटेल है, और बहुत ज्यादा वास्ट है। तो उसमें हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर न्यूरन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका 11th में ये सारा चैप्टर्स है। फिर जब 12th में आओगे, फिर आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद आप पढ़ोगे इवोल्यूशन। उसके बाद आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद आप पढ़ोगे स्ट्रैटेजीज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सब पढ़ोगे। आया समझ में शंकर? या देयर आर ऑलमोस्ट 19 चैप्टर्स, आधा से थोड़ा ज्यादा होगा। टोटल 38 चैप्टर्स है, उसमें से जूलॉजी में 19 से 20 चैप्टर्स आ जाएंगे।
यू डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी चैप्टर्स आएंगे वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। वॉइस इज ब्रेकिंग, कल्पेश कह रहा है। इज इट क्लियर नाउ कल्पेश? माय वॉइस इज क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, इट्स ऑडिबल नाउ, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैंने अभी तक जो भी डिस्कस किया है ये क्लियर है क्या आपको? जो बेसिक मैंने अभी बताया आपको, इंट्रोडक्शन दिया एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है, क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोग अभी पिछले एक हफ्ता से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो एज पर माई नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट आई हैव गॉट। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आपने आपने वहां पे पढ़ा होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जीव मंडल, मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कमिंग अंडर बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम किसको लेके हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बनता है उसको। उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उसमें हमें बैक्टीरिया मिलेगा, वायरस मिलेगा, फंगस मिलेगा, प्रोटोजोन्स मिलेंगे, उसमें हमें एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। तो हम ये जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स है, उसको हमने कैटेगराइज किया, उसको हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। ऐसे करके बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है। वैसे ही हम एनिमल्स को भी क्लासिफाई करते हैं उनके बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर। तो वो जो क्या क्या क्राइटेरिया है, देखो सारे क्राइटेरिया तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट मेन क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, कोई भी एनिमल हमें जब नया मिलता है उसको ग्रुप करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया वट एवर वी आर यूजिंग, तो उसमें जो साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक जो मेथड है, उसमें हम जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंस है वो हम इस क्लास में, क्लास 11 में डिस्कस करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? चलो, so let us start. So these are the basis of क्लासिफिकेशन। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है, कभी भी हमें कोई भी एनिमल मिलेगा तो पक्का वो एनिमल कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि हाँ अचानक से मैजिक के जैसे आ जाएगा। आप घर में बैठे हो, अचानक से एक एनिमल आ गया, ये जंगल में अचानक से एक एनिमल आ गया, ऐसा होता है? या पक्का हमें वो एनिमल कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, या तो पानी से मिलेगा, या तो जंगल से मिलेगा, या मिट्टी के अंदर से मिलेगा, कहीं ना किसी हैबिटेट से तो मिलेगा। हैबिटेट का मतलब समझते हो आप? क्या होता है हैबिटेट? व्हाट डू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट क्या मतलब है? हैबिटेट मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट मीन्स ऑर्गेनिज्म और द एनिमल वेयर दे लीव, जहां पे वो रहते हैं उसको हम कहते हैं हैबिटेट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हैबिटेट जो है वो भी अलग अलग तरह का हो सकता है ना। हैबिटेट क्या हो सकता है? एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, मतलब एनिमल पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, दोनों जगह पे रह सकते हैं। बेसिकली हम अगर हैबिटेट को डिवाइड करेंगे हमारे धरती पे, तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या तो पानी में रहने वाले जीव, या तो धरती पे मतलब जो लैंड में रहते हैं। तो दो तरह से होगा, एक तो एक्वेटिक, दूसरा होगा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो इसमें मैं पहले बात हम करेंगे एक्विटिक के बारे में। तो एक्विटिक के बारे में जब बात करेंगे तो हम मैं यहाँ पे कुछ मुझे डिस्कस करना है, एक डायग्राम बना के दिखाना भी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
अभी आया वॉइस? चलो, थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, सो डोंट वरी, इट हैपन समटाइम। एक मिनट। चलो, अब देखो टेरेस्ट्रियल, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? एक्वेटिक जो एनवायरमेंट है उसके बारे में। सो लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। तो देखो, मान लो कि ये कोई एक वाटर बॉडी है, जिसको मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं, ठीक है? तो इसमें अभी ध्यान देना आप। सो सपोज दिस इज अ वाटर बॉडी, दिस इज अ पॉन्ड, ठीक है? तो इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है? एरियल हैबिटेट, देखो कोई भी ऐसा एनिमल तो नहीं है जो हवा में ही रहता है कंटिन्यूअसली। उड़ जैसे बर्ड्स है, दे कैन फ्लाई, बट एट द एंड दे कम बैक एंड दे लिव ऑन ट्रीज, ठीक है? तो उसके लिए अब एरियल तो बोलते हैं उनको, बट एटलीस्ट वो रहते कहाँ पे हैं? फाइनली कहाँ रहते हैं बताओ? कोई पैदा होने के बाद कोई ऐसा होता है कि पैदा हुआ बर्ड और वो हवा में ही है, और मतलब जिंदगी उसका हवा में ही बीत गया, हवा में ही रहता है, मतलब उतरता ही नहीं, हवा में ही रहता है, वैसा होता है? ऐसा ऐसा कोई भी देखा है ऐसा एनिमल? नहीं होता है ना। तो इसीलिए जहाँ पे देखो, हैबिटेट का मतलब होता है द एक्चुअली द इट्स अ नेचुरल प्लेस और नेचुरल कंडीशन वेयर द एनिमल इज लिविंग फॉर द मैक्सिमम टाइम, ठीक है? ठीक है ना? चलो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है? तो वो उस तरह के एनिमल भी हमें मिलेंगे। और अगर एनिमल्स पे अगर हम देखेंगे तो बर्ड्स आर द ओनली एनिमल which can actually fly, and there are some other animals also there, like bats can fly, there are some insects are there which can also fly. So there are different types of animal which can also fly apart from birds. But you have to see that they're living where they're living actually at the end of the day. They're flying and they're coming back to their habitat, proper habitat, ठीक है? बट हम उनको एरियल बोलेंगे क्योंकि वो उड़ते हैं। अभी वो टेरेस्ट्रियल में आएगा, उसका टेरेस्ट्रियल में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्वेटिक पढ़ रहे हैं, तो लेट अस डिस्कस एक्वेटिक, ठीक है? अच्छा, अच्छा, बहुत लोगों ने कुछ लिखा है अभी। साक्षी ध्यानेश्वर भापकर, उन्होंने लिखा है, सर, कंडीशन द कंडीशन नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल, द कंडीशन in that natural place are favorable for survival as the climate and temperature, definitely। अब देखो कहीं पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पे तो सरवाइव नहीं कर सकते ना तुम। जितना हमें टेम्परेचर जरूरी है उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, उससे ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन हो जाएगा, तो हाँ, कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली जहाँ पे कोई भी एनिमल सरवाइव कर रहा है, वो उसका फेवरेबल कंडीशन, उस हैबिटेट में उसको फेवरेबल कंडीशन मिला है, इसीलिए वो सरवाइव कर रहा है। चलो, लेट अस विदाउट फर्दर डू लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन। अभी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आप देखोगे, इफ दिस इज अ वाटर बॉडी, तो सबसे पहले आपको समझना होगा, देखो ब्लू कलर से मैंने जो बनाया है, दिस इज कंप्लीटली वाटर। अभी जो एक वाटर बॉडी में ये जो कंप्लीट जो वाटर है, ये जो पूरा पानी है, इसको हम बोलते हैं पेलाजिक। इसको हम क्या बोलते हैं? पेलाजिक। ध्यान देना, ठीक है? अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, मुझे बताओ, अभी मान लो जो सन है, सनलाइट जो है, वो आएगा इस पॉन्ड में आएगा, और ये सनलाइट कहाँ तक जा सकता है? क्या ये पूरे बॉटम तक जाएगा या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? ये एक पर्टिकुलर जोन तक ही जाएगा या बॉटम तक जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड। नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बॉटम तक नहीं जा सकता, इट कैनॉट पेनिट्रेट।
एक पर्टिकुलर जोन तक जाएगा। तो मान लो जिस जोन तक गया, मान लो इस जोन तक गया, तो जहां तक लाइट पहुंचता है पानी के अंदर, उस जोन को हम कहते हैं फोटिक जोन। ध्यान से समझो, हर एक चीज को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये नोट पे नहीं मिलेगा, ये समझना है और अभी बना लेना है, या तो बाद में बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट में अलग से नहीं मिलता है, ये मैं समझाने के टाइम में बहुत कुछ बोलता हूँ। तो ये चीज आपको बाद में, अभी रफ में लिख लो या रफ में कर लो, बाद में ये नोट में ऐड करना है। इट इज योर ड्यूटी एंड आई विल नॉट लिसन आफ्टर दैट। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं जो भी पढ़ाता हूँ, काफी सारी चीजें आपको मेरे पढ़ाते समय में बोर्ड में, अभी ऑफलाइन क्लास होगा तो बोर्ड में बताऊंगा, अभी ऑनलाइन है तो यहाँ पे बोर्ड में बताऊंगा। So it is your responsibility that you should collect all the information and compile it in your notes when you're making it. अच्छा, मैं बता देता हूँ हम कैसे पढ़ते हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं पहले आपको पूरा पढ़ाऊंगा। मान लो आज हमने जो क्राइटेरिया जहां तक पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, और मैं क्या करूंगा, आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, आपके हिसाब से जो बैच जैसे बोलता है मैं उस हिसाब से करूंगा। अगर आप बोलोगे कि डे अभी स्पॉट में ही जो भी मैंने पढ़ाया वो मैं नोट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रखूंगा, आप लिख लेना, या अगर आप बोलोगे नहीं सर आप बाद में भेज देना ग्रुप में, मैं हम लोग वहां से लिख लेंगे, जो भी करो आपकी मर्जी, बट आपका नोट अलग होना चाहिए जूलॉजी में। फर्स्ट सेकंड, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ समझाने के समय में, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, जो डायग्राम या कुछ भी पॉइंट्स, वो भी आपके नोट्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं बस ये पढ़ते समय पढ़ लिया और बाद में नोट्स पे लिखा नहीं। आया समझ में सबको? क्लियर है? क्लियर है? तो आप लोग क्लास के दौरान लिख लोगे, ड्यूरिंग द क्लास यू वांट टू राइट ऑल द नोट्स, और यू वांट टू राइट इट लेटर ऑन। मैं तो बोलूंगा क्लास के टाइम में ही लिख लो जो भी मैंने पढ़ाया है। आई विल वेट फॉर 2-3 minutes, आई विल शो यू द स्लाइड, यू हैव योर नोटबुक, यू ओपन द नोटबुक, आराम से उसको लिखो, तुम्हारा लिखना हो जाएगा, तुम टाइप करो सर हो गया, फिर मैं आगे स्लाइड लेके जाऊंगा, फिर लिख लो। ठीक है? यस, दैट इज माई सजेशन। अब देर आर मेनी स्टूडेंट्स दे लाइक इट लेटर ऑन, इन लेटर ऑन आफ्टर द क्लास, दैट इज देयर चॉइस। ठीक है, बट इफ यू लाइक, माई सजेशन इज यू शुड राइट द नोट्स ऑन स्पॉट ड्यूरिंग द क्लास। इससे क्या होगा, आपको नोट्स में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो, और आपका नोट्स अपडेटेड हो जाएगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आपको क्लास भी खत्म हो गया, नोट लिखना भी खत्म हो गया, बस अभी पढ़ना है। ठीक है? दैट इज माई सजेशन एंड नाउ इट इज योर विश। ठीक है, तो ध्यान से अभी देखो, तो इसको समझाता हूं मैं, उसके बाद मैं स्लाइड दिखाऊंगा, फिर लिख लेना। अब देखो सो द जोन, जहां तक, ठीक है, light the zone till which, or the depth till which the light can penetrate, it can go, उस जोन को हम कहते हैं फोटिक जोन। क्या कहते हैं उसको? फोटिक जोन। अब देखो फोटिक जोन का क्या फायदा है। अब देखो लाइट जहां पे पहुंचेगा, जहां तक लाइट जाएगा, इसका मतलब है वहीं तक फोटोसिंथेसिस होगा। अब विदाउट लाइट तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। इसका मतलब है जो भी ग्रीन एल्गी है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, वो सब हमें कौन सा जोन में मिलेंगे? फोटिक जोन में मिलेंगे। अच्छा सर, फिर जो वाला पार्ट जहां पे, जिस जोन में लाइट नहीं पहुंचता, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल, ए फोटिक जोन। मतलब वहां पे लाइट नहीं जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ए फोटिक जोन। है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लो एक पॉन्ड है, बहुत बड़ा पॉन्ड या लेक है बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें इतना सारा पानी, देखो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, तो जो टोटल जो वाटर है उसको हम कहते हैं पेलाजिक। ये जो जोन है पूरा पानी का, इसको हम बोलते हैं पेलाजिक जोन। इसमें से अभी हमने क्या डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट। ठीक है, लाइट कितना किस डेप्थ तक जाता है उसके बेसिस हमने हमने पूरा पेलाजिक जोन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जिस डेप्थ तक, जिस जोन तक लाइट आता है उसको हम बोलते हैं फोटिक जोन, जहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर मैक्सिमम होगा। और जिसके बाद जिस जोन में लाइट नहीं पहुंचता, डार्क जोन, उसको हम बोलते हैं ए फोटिक जोन। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। किसी ने बोला है सर एक बार फिर से समझाओ, मैं फिर से समझाता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी ने लिखा है सर हाउ द प्लांट ग्रोज इन द बॉटम ऑफ ओशन।
ओशन के बॉटम में प्लांट ग्रोथ होता है, आपको ये कौन बताया गौरव? कहाँ देखा आपने कि ओशन के बॉटम में प्लांट ग्रो होता है? कहीं तो देखा होगा, आपने देखा है? तो फिर किधर ग्रो होते वो? मतलब ओशन में प्लांट्स होते हैं क्या? ओशन में प्लांट्स नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट के जैसा होता है क्या? तुमको क्या लगता है, बताओ? जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, लैंड में जिस तरह से जंगल होता है, वैसे प्लांट उस तरह से, प्लांट उस तरह का जंगल आपको ओशन में मिलेगा? क्या लगता है आपको? नहीं मिलेगा। एक्वेटिक एनवायरनमेंट अलग है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट अलग है। और आप जब दूसरे अपने शायद वीडियो में देखा होगा कि कहीं पे छोटे छोटे प्लांट्स या सीवीड्स, एल्गी या ग्रास, सी ग्रास जिसको हम बोलते हैं, वो बनता है, तो ध्यान देना वो फोटिक जोन में है। वो शैलो वाटर में होता है, जहाँ पे लाइट पहुंचता है। ठीक है। मरीना ट्रेंच का नाम तो सुना ही होगा। मरीना ट्रेंच का डेप्थ कितना है? कितना डेप्थ है? ऑलमोस्ट +10 किलोमीटर, राइट? 10 किलोमीटर से ज्यादा है। तो वहां पे लाइट पहुंचता होगा, तुम लोगों को लगता है? तो ओशन के बॉटम में वैसे प्लांट उस तरह से नहीं होता है। ओशन के बॉटम में तो होता ही नहीं है, भूल जाओ, कोई चांस नहीं है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है वो का क्या होते हैं? मैक्सिमम जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में, 2 फाइटोप्लैंक्टन्स पढ़ेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, आप बायोलॉजी क्लास में भी पढ़ना, फाइटोप्लैंक्टन्स। और कौन से होते हैं? एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एटसेट्रा। ठीक है। तो मैक्सिमम पूरे ओशन में जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटिक जोन में होता है। फोटिक जोन मतलब जहां तक लाइट पेनिट्रेट करता है, जहां तक लाइट पहुंचता है वहां तक बस। ठीक है। ऑलमोस्ट 500 मीटर के आसपास, उसके नीचे लाइट नहीं जाती। उसके नीचे कोई भी फाइटोप्लैंक्टन ग्रो नहीं करता। ठीक है, प्लांट को तो छोड़ ही दो। ठीक है, चलो एक बार वो समझा देते हैं फिर से। देखो मैंने क्या बताया कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको, उसका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक पॉन्ड का, या एक लेक ले लो, जो भी मान लो। तो उसमें देखो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दैट इज द वाटर। अब इस पूरे पॉन्ड में एक टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर तो होगा कि नहीं होगा, बोलो? अब इस टोटल, ये जो पॉन्ड है, ये लेक है, इसका तो कैपेसिटी है ना। इसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको हम कहते हैं पिलाजिक। ध्यान से समझो, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं? पिलाजिक। ठीक है। या द टोटल वाटर इज कॉल्ड पेलाजिक जोन, दैट्स ऑल। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जितना, मान लो यहाँ पे जितना भी वाटर है उसको मैं निकाल लूं, अब इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो वाटर है, दैट इज द हैबिटेट। तो वाटर इज द हैबिटेट, दैट इज वाई कॉल इट इज एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अभी वाटर लेक में होने दो, वाटर पॉन्ड में होने दो, वाटर कहीं में भी, रिवर में भी होने दो, तो रहने के लिए हैबिटेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कौन सा हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है? पानी में रह रहा है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो ये मैंने बताया था पहला। दूसरा है कि जो लाइट पेनिट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर जोन तक ही लाइट पेनिट्रेट करता है, उसके बाद लाइट नहीं जा सकता। तो जिस जोन तक लाइट जाएगा इसका मतलब है उस जोन में फोटोसिंथेसिस होगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं फोटिक जोन। और जहां पे लाइट नहीं पहुंचेगा, जिस डेप्थ में लाइट नहीं पहुंचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ए फोटिक जोन। ठीक है। यहां तक समझ में आया? अभी क्लियर है कि नहीं, बताओ? क्या किसी ने कुछ और बोला है? साक्षी बोल रहे सर वॉल्यूम इज चेंजिंग, नो एज इट कैन नॉट बी एग्जैक्ट। क्या बोला, समझा नहीं। क्या कहा आपने, नहीं समझा मैं।
आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन माइक ऑन करके बताओ कोई। स्क्रीन में दिख रहा है मैं स्पीड टेस्ट रन कर रहा हूँ? कैन यू सी द स्पीड टेस्ट? देख लो मेरा स्पीड। डाउनलोड स्पीड इज 27.9 Mbps. Upload speed is 14 Mbps. That is my speed of my internet. नहीं दिख रहा है? अच्छा दिखाता हूँ मैं, देखो। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सुनाई नहीं दे रहा है, सो लेट मी शो यू। अभी दिखा कि नहीं? अभी बताओ। या सो दैट इज माई स्पीड। तो मेरा स्पीड तो ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को स्पीड का कुछ प्रॉब्लम होगा तो चेक कर लो। माई नेटवर्क इज हाई स्पीड, इट इज 30 Mbps। चलो, अभी तक जो भी समझा है क्लियर? एक्वाटिक एनवायरनमेंट के बारे में क्लियर है? हम लोग जल्दी नहीं जाएंगे, समझ समझ के जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, इसमें हर चीज समझ के जाना है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, भागना नहीं है। किसी को समझ में नहीं आएगा सो यू प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन नॉट वंस, many times, as many time as you want. I have no issue, but the only thing is that you need to understand. बिना समझ के घर मत जाओ, मतलब घर में ही हो अभी, जहां कहाँ जाओगे, मतलब बिना समझ के हाँ मत बोलो, समझ के बोलो। अच्छा, गौरव कह रहा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कौन सा एक्सप्लेन करना वो तो बताओ गौरव, क्या एक्सप्लेन करना है? क्या एक्सप्लेन करूं गौरव? फिर से कौन सा? पिलाजिक। ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूं। मान लो अगर ये कोई वाटर बॉडी है तो इसमें क्या होगा? वाटर तो होगा। तो मान लो ये मैंने ब्लू, इसीलिए मैंने अलग कलर से बनाया। तो इसमें वाटर, अभी ये जो यहाँ पे पॉन्ड मैंने बनाया है, ये लेक बनाया है, इसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है इस लेक में, इसी को हम कहते हैं पिलाजिक। इसी को हम क्या कहते हैं? पिलाजिक। बस इतना ही आया समझ में? समझ में आया? चलो, और किसी को डाउट? और किसी को कोई डाउट? नो डाउट, गुड। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज और बताना है तुम लोगों को। अब ये जो एक्वेटिक एनवायरमेंट है, इसमें हमें जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जैसे हमें क्या क्या मिलेंगे? देखो, जू प्लैंकटन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जू प्लैंकटन। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। जू प्लैंकटन। ठीक है। और क्या मिलेगा? नेक्टन्स। ठीक है। और क्या मिलेगा? बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। राजेंद्र तन्वी पवार पूछ रही है, सर व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर जोलॉजी? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैंने शुरू में क्या बोला? बोलो। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, यही तो फर्स्ट चैप्टर है। चलो, क्लियर है? अब देखो हमने क्या पढ़ा कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हमने देखा अलग अलग जोन है, हमने वो देखा। अब इसमें एक चीज और जान लो कि जो बॉटम पार्ट होता है एकदम, ठीक है, बॉटम जो होता है किसी भी वाटर बॉडीज का, किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट का जो बॉटम होता है, उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। क्या बोलते हैं उसको? बेंथिक जोन। देखो मैं दिखाता हूं। मान लो ये है लेक, तो ये जो बॉटम है इसको हम कहते हैं बेंथिक जोन। बेंथिक जोन। ठीक है।
अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं उनको। एक पहला होता है जू प्लैंकटन, जो मैंने बताया। इसके पहले मैंने बताया था फाइटो प्लैंकटन। देखो फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन में क्या डिफरेंस है ये पहले समझ लो। फाइटो प्लैंकटन मतलब दोज हु आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, दोज हु कैन डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, जू प्लैंकटन मतलब, जू प्लैंकटन क्या होते हैं? दिस आर बेसिकली द लार्वल स्टेजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और कुछ होते हैं जू प्लैंकटन जो थ्रू आउट द लाइफ उतने जू प्लैंकटन के फॉर्म में ही रहते हैं। दूसरे हैं जो उससे जू प्लैंकटन से साइज में बड़े होते हैं, जैसे फिशेस हैं, दूसरे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये सब जो होते हैं इसको हम कहते हैं नेक्टन्स, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है जो कहाँ पे रहते हैं? बॉटम में रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बॉटम में रहते हैं, स्टारफिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, है ना, ये जो बॉटम में रहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम कहते हैं बेंथिक ऑर्गेनिज्म। और बॉटम में जो जोन है, वाटर बॉडी का जो बॉटम पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम बोलते हैं बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझो, फिर से बताता हूँ। नॉर्मली जो जू प्लैंक्टन्स होता है वो अपर पार्ट में ही रहता है, ठीक है। और क्या वो आपके लोअर जोन में नहीं रह सकता? हाँ, यहाँ पे भी रह सकता है, ठीक है। वो कहीं पे भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जू प्लैंक्टन्स क्या होता है? वो साइज में छोटा होता है। ज्यादातर क्या फॉर्म होते हैं? लार्वल स्टेजेस होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका जो लार्वल स्टेज होता है मैक्सिमम, वो जू प्लैंक्टन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लैंक्टन्स के फॉर्म में ही रहते हैं, उनका लाइफ प्लैंक्टन्स के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। उसके बाद होता है नेक्टन्स। नेक्टन्स मतलब थोड़ा साइज में बड़ा, जैसे फिशेस है, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको हम बोलते हैं नेक्टन्स। थर्ड क्या होता है? जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बॉटम में रहते हैं, बेंथिक जोन में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बेंथिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? आया समझ में? क्लियर है? समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बताओ। ओके, सर नेक्टॉन किसी भी जोन में हो सकते हैं? हाँ, नेक्टॉन किसी भी जोन में हो सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ फिर से, एक मिनट, लेट मी शो यू। लेट मी टेक अ पेज। यस, देखो ध्यान से समझो, फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों से। अच्छा, टेरिस्ट्रियल जोन में, क्योंकि हम टेरिस्ट्रियल जोन में रहते हैं, हम टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो टेरिस्ट्रियल जोन जो है, टेरिस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, अभी लैंड में जो ऑक्सीजन या फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? बताओ, तुम लोग बताओ। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, ऑब्वियसली, वेरी गुड, प्लांट्स। और प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, हमें पता है। वैसे ही द सेम वे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी तो ऑक्सीजन का जरूरत है। डिजॉल्व ऑक्सीजन वहां पे भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको भी तो गैसेज एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे भी प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर होना चाहिए। और वहां पे प्लांट तो नहीं हो सकते, तो वहां पे क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए वहां पे कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। अब ये प्लैंक्टन का मतलब ही आप लोगों को समझाता हूं। देखो प्लैंक्टन का मतलब होता है ड्रिफ्टर्स, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। प्लैंक्टन्स का मतलब होता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टर। प्लैंक्टन का मतलब होता है ड्रिफ्टर। ड्रिफ्टर मतलब लोग समझते हो ना? ड्रिफ्टर मतलब दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट लोकोमोट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश, ड्रिफ्टर है। उनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। वाटर करंट उनको जहां लेके जाएंगे वो वहीं पे जाएंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स वर्ड का मतलब ही होता है ड्रिफ्टर्स।
फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला फाइटोप्लैंक्टन, आपने बोला जूप्लैंक्टन, तो इनमें क्या फर्क हुआ? देखो, फाइटोप्लैंक्टन मैंने जब बोला, इसका मतलब है फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, दोज हु कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन मतलब दोज हु कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब दूसरा, अब देखो जूप्लैंक्टन जो है, अभी फाइटोप्लैंक्टन आपने आपको पहले बता दिया, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जूप्लैंक्टन मतलब, अभी ये जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, उनका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज, देखो समझाता हूं मैं, ये ज्यादातर जूप्लैंक्टन होते हैं, और साथ में कुछ दूसरे एनिमल्स भी होते हैं जो कि जूप्लैंक्टन के फॉर्म में ही रहता है, उनका लाइफ हिस्ट्री जूप्लैंक्टन फॉर्म में ही होता है। ठीक है सर, फाइटोप्लैंक्टन विल बी फाउंड इन दी फोटिक जोन। यस ऑब्वियसली, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, तो फाइटोप्लैंक्टन हमें कौन से जोन में मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ फोटिक जोन में ही मिलेंगे। अब फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट हो सकता है क्या? फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ हमें फोटिक जोन में मिलेगा, ए फोटिक जोन में नहीं मिल सकता। इतना तो क्लियर हो गया। जूप्लैंक्टन मतलब एनिमल्स के लार्वल स्टेज। अभी लार्वल स्टेज मतलब आप सबको पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रॉग होता है उसका लार्वल स्टेज होता है टैडपोल, पढ़ा है कि नहीं? जो फ्रॉग होता है उसका लार्वल स्टेज होता है टैडपोल। वैसे ही जब समुद्र में, मतलब आपके ओशन में बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, स्टारफिश है, स्पंजेस है, निडेरियंस है, जेलीफिश है, कोरल्स है, कितने सारे एनिमल्स हैं, उनके भी तो लार्वल स्टेज होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होगा? होगा, पक्का, वेरी गुड। तो वो जो लार्वल स्टेजेस हैं उनको हम कहते हैं जूप्लैंक्टन। समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में ना? तो जो लार्वल स्टेजेस है मैक्सिमम वही होते हैं जूप्लैंक्टन ज्यादातर। ठीक है। अच्छा, नेक्टॉन्स कौन है? जो नॉर्मल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं को हम बोलते हैं नेक्टॉन्स, जो कि पेलाजिक जोन में रहते हैं बस। वो बॉटम में भी रह सकते हैं, टॉप में भी रह सकते हैं, मिडिल में भी रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत डेप्थ में भी चले जाओगे ना, वहां भी आपको फिशेस मिलेंगे। अगर आप 5 से 4 किलोमीटर नीचे भी जाओगे तो भी आपको फिशेस आर एग्जांपल्स ऑफ नेक्टर्न्स, फिशेस आर एग्जांपल्स ऑफ द नेक्टर्न्स, क्रिल्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नेक्टर्न्स, दिस आर ऑल नेक्टर्न्स। ठीक है। जेलीफिश आल्सो कमिंग अंडर नेक्टर्न्स, ओरेलिया, स्क्वीड, sepia, these are all example of nectarine. Loligo, octopus, these all are nectarines. No, corals are not nectarines. They're where they're living, they're living on bottom. अभी तो मैंने बताया, जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नीचे रहता है, बॉटम में रहता है, उनको हम कहते हैं बेंथिक ऑर्गेनिज्म। कोरल तो बेंथिक है। कभी देखा है कोरल? हाँ, मतलब बेंथिक रीजन कितने लोगों ने कोरल देखा है, पहले तो बताओ। जू प्लैंकटन कैन ऑल्सो लिव इन एनी ऑफ द जोन। जू प्लैंकटन आपको फोटिक जोन में मिल जाएगा, ए फोटिक जोन में मिल जाएगा। जू प्लैंकटन आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन फाइटो प्लैंकटन सिर्फ आपको फोटिक जोन में ही मिलेगा। कोई पूछ रहा है सर नेक्टन इज बिगर देन द, अरे नेक्टन इज पहले तो समझो, नेक्टन इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल और ऑर्गेनिज्म। हमने बस शॉर्ट में एक टर्म लगाया है उसको, नेक्टन, जो स्विम कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, जू प्लैंकटन, प्लैंकटन का मतलब है ड्रिफ्टर, खुद से नहीं मूव कर सकते, वाटर करंट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन नेक्टन्स में ऐसा नहीं होता। नेक्टन्स मतलब ऑल द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑक्टोपस, स्क्वीड, सेपिया, फिशेस, ये खुद से मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, खुद से मूव कर सकते हैं कि नहीं? आप लोगों ने, कितने लोगों ने अभी तक ओशन गया है, अब समुद्र देखा है? पहला प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कभी, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है उसका, ओशन का, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। या जेलीफिश कहाँ पे होना चाहिए, किस जोन में होना चाहिए, बोलो? जेलीफिश पेलाजिक जोन में होना चाहिए। ठीक है, जेलीफिश कहीं भी जा सकता है।
ऐसे भी जेलीफिश है जो कि डीप इनसाइड द ओशन भी रहता है, बहुत नीचे भी रहता है, हमें जेलीफिश मिला है। ऐसे भी जेलीफिश है जो कि बहुत डेप्थ में भी रहता है। सर सबसे ऊपर लेयर में कौन होता है, जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स? तुम बताओ, अभी तो इतना डिस्कशन किया ना, अब बताओ कौन होना चाहिए सबसे टॉप में? तुम खुद ही बताओ। फाइटोप्लैंक्टन, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया, ठीक है? फाइटोप्लैंक्टन ऑब्वियसली, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर जहां पे लाइट जोन होगा वहीं पे होगा, सबसे टॉप में होगा, ठीक है। तो तीन तरह के हमने अलग अलग से पढ़े, अभी क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लियर है? अच्छा, किसी ने पूछा है सर सी स्नेक बेंथिक होगा ना? नहीं, सी स्नेक कहाँ बेंथिक होता है? जरूरी है हमेशा सी स्नेक बेंथिक ही होगा? नॉर्मली तो बेंथिक ही होते हैं, कोरल्स के रिफ्स में, कोरल रीफ केव्स इसमें रहते हैं वो बेसिकली। या बेंथिक का मतलब होता है बॉटम, बेंथिक का मतलब होता है बॉटम। देखो मैं तुम लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को अभी तक काफी लोगों ने अभी तक इसके बारे में उतना डिटेल में देखा नहीं है। मैं दिखाता हूँ एक बार, एक मिनट, कहाँ गया? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। चलो अभी दिखेगा आपको। हम शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ मैंने स्क्रीन हटा लिया था, अभी दिखेगा, देखो दिख रहा है अभी? देखो, कैन यू सी दिस? दिख रहा है? देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया है, प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोस। देखो फोटोग्राफ के साथ प्लैंक्टन्स देखो, लेफ्ट साइड में ग्रीन में जो दिख रहा है आपको वो फाइटोप्लैंक्टन है। राइट साइड में जो अलग अलग कलर से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं वो जू प्लैंक्टन है। नेक्टॉन मैंने आपको बताया था, दोज हु कैन एक्चुअली मूव, माइग्रेट by themselves, those who can locomote by themselves, like fishes, other organism, aquatic organism। बेंथिक में देखो कौन कौन है, स्टारफिश, मसल्स, उसके बाद जो आपके क्रैब्स, सी ग्रासेस, ठीक है, ऑयस्टर, दिस आर ऑल बेंथोस। आया समझ में? जू प्लैंक्टन कहाँ है देखो ध्यान से, ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो फाइटोप्लैंक्टन है। राइट साइड में देखो तीन अलग अलग प्रॉन के जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, एक दिखा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ब्लू ब्राउन एंड लिटिल बिट ऑफ ब्राउनिश कलर का, दिखा कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? अभी मैं आपको जू प्लैंक्टन का भी फोटो दिखाता हूँ, रुको, तुमको जू प्लैंक्टन का भी फोटो दिखाता हूँ। जू प्लैंक्टन्स, अगर हम पानी लेंगे, मतलब समुद्र से अगर हम ओशन से वाटर लेंगे ना, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? दिस इज सिरिपिड, दिस इज वन टाइप ऑफ लार्वल स्टेज। बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
ये हमने ये पानी को, वाटर को कलेक्ट किया है और उसको हमने ये स्टडी किया है, उसको उसको हमने देखा है। देखो, दिखा दिखा आप लोगों को? समझ में आया? दिखा ये फोटो? देखो, ये सारे जू प्लैंक्टन से ऐसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे होते हैं। हमें नॉर्मली दिखते नहीं है, हमें वो वाटर कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम अगर रखेंगे तो हमें दिखता है। दे आर वेरी स्मॉल। जू प्लैंक्टन का क्या काम होगा बताओ, तुम लोग देखते हैं? ये तो फूड चेन में काम आता है ना? अभी प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, हमें पता है प्लांट्स को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स करते हैं। वैसे ही एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी तो फूड चेन होगा। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स उसको कंज्यूम करते हैं जू प्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन कंज्यूम कंज्यूम करते हैं जो आपके नेक्टन्स है, जो फिशेस है, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो उसको कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं। समझ लो। See, I can understand because this is a new beginning for all of you, and I also know that. So that's why I will always try to help you as many different ways I can. तो एक्चुअल में क्या है कि आपने अभी तक जो भी साइंस पढ़ा है ना, दोज वेर एक्चुअली बेसिक्स। आपने जस्ट ABCD पढ़ा है। तो अभी अभी आप साइंस क्या है एक्चुअल में थोड़ा समझोगे। ठीक है, तो अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आप। ठीक है, आपने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। देखो, आज मैंने जो भी डिस्कस किया इसके बारे में आपको नहीं पता था। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि ध्यान से, ये एनिमल किंगडम का चैप्टर पहले से बता रहा हूं मैं, ध्यान से फिर से सुन लो। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एंटायर जोलॉजी। एनिमल किंगडम को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बेस है, इसके बेसिस में ही आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। अभी मैं इस चैप्टर में जो पढ़ाऊंगा बार बार मैं आगे बोलने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और इसको आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये सारे टर्म, ये सारा जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, ये बार बार आगे यूज होगा। तो मैं बार बार आगे नहीं बताने वाला। ठीक है, चलो तो अभी लिख लो। आई विल शो यू द स्लाइड्स। सो फ्रॉम हियर यू नीड टू राइट। तो पहले लिखो, यहां तक हो जाएगा तो बताओ। प्लीज माइक ऑन करके बताना, बिकॉज व्हेन आई शो दिस स्लाइड आई कैनॉट सी योर चैटिंग। मैं तुम्हारा चैट नहीं देख सकता, तो एक बार माइक ऑन करके बताना है लिख लिया। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। तो फटाफट इसको लिखो, स्टार्ट करो।
लिख लिया तो बताओ, then I will scroll down, then you can finish the slide. Please mic on करके बताना because I cannot see your chattings right now. Done, sir. Done. Everyone done? ठीक है, लिख लो. अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को. फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का एग्जाम्पल हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है. इसीलिए हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो एग्जाम आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन बहुत वास्ट टॉपिक्स है. तो वो बस आपको बस इतना कॉन्सेप्ट जानना है उसका कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, जूप्लैंक्टन क्या है. डिटेल में अभी हमको नहीं पढ़ना है नहीं सिलेबस में आपका, इसीलिए मैंने नहीं दिया. अच्छा, जस्ट एक मिनट, मैं एक बार चैट देख लेता हूँ आप लोगों का. ठीक है. अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक बार फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन दिखाया है ना, तो एक बार फाइटोप्लैंक्टन भी दिखा देता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर लिख लेना उसके बाद. क्या चल रहा है? Yeah, can you see this? कहाँ गया? Yeah. Can you see this diagram? This photograph? ये भी हमने क्या, ये भी क्या फोटो है ना, ये मतलब पानी लेके उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखे, उसको मैग्नीफाई करके हमने जब देखा तो हमें ये अलग अलग तरह के फाइटोप्लैंक्टन्स दिख रहे हैं. आप देखो ध्यान से, अलग अलग शेप के, अलग अलग पैटर्न के दिखा. दिस आर फाइटोप्लैंक्टन्स. ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर ओशन में. दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस. समझ में आया? देखा सबने? Yes, obviously they have chlorophyll. So without chlorophyll, how can they perform the process of photosynthesis? Definitely they have chlorophyll. ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सब लोगों से शेयर करूंगा. आप लिखते रहो और सुनते रहो. So this was a slide. So you finish it and you listen also.
फैक्ट ये है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस दुनिया में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का रिप्लेनिशमेंट होता है, मतलब मैक्सिमम जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ द सी। किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या फाइटोप्लैंक्टन्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या टेरेस्ट्रियल जो हमारा फॉरेस्ट है, जो डिफरेंट प्लांट्स है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? मतलब किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोडक्शन कौन करता है टोटल हमारे ऑल ओवर द, मतलब हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे टोटल जो प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, उसमें सबसे ज्यादा किसका है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का या एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स का, मतलब ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होता है उसका? बताओ, देखते हैं क्या बताया। बहुत लोगों ने बताया टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल, कुछ लोगों ने बताया फाइटोप्लैंक्टन, नहीं काफी लोगों ने बताया फाइटोप्लैंक्टन। यस, तो आंसर इज फाइटोप्लैंक्टन, नॉट द टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट का कितना परसेंटेज है? बहुत कम। सो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है पूरे जो रिप्लेनिशमेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है। ठीक है, सो वी नीड टू बी थैंकफुल टू दिस फाइटोप्लैंक्टन्स, बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग ऑक्सीजन, नॉट बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट ओनली। हाँ, प्लांट भी प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन का, बट मैक्सिमम कौन करता है अगर पूछोगे तो? फाइटोप्लैंक्टन्स। चलो, ये स्लाइड लिख लिया? हो गया ये स्लाइड? हो गया ये पेज? खत्म हो गया? Yes. सबका हो गया? Shall I move on to the next page? Sir, please will you go and show the first page? Sorry, first point. This is the first point. हो गया? Yes, sir. Thank you, sir. ये पेज हो गया खत्म? Shall I move on to the next page? Yes. Yes. चलो, यहाँ पे ओवी पैरा और वी पैरा को थोड़ा ठीक कर लेना, उल्टा लिखा है यहाँ पे, सो यू प्लीज करेक्ट इट। राइट डाउन दिस ऑल दिस पॉइंट्स। आज यहाँ तक लिख लो, फिर छोड़ देता हूँ, छोड़ दूंगा मैं। And I will suggest you that you can, after the class, you can go to Google and you can read about your zooplanktons, phytoplanktons, if you have interest. So you can go and check in Google, and you can find some more interesting photographs, videos, but don't waste much time in that. Please, this is my suggestion, because these are very big topics. These are very big. People are doing research for their whole life. सो ज्यादा मत देखना, थोड़ा सा देखो, जितना आपको अच्छा लगे थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, डीप सी में डू प्लैंक्टन्स, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स, नॉर्मल जो फोटोग्राफ्स है उसका, बस उतना देखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, बंद कर दो, ज्यादा नहीं। अच्छा, एक स्मॉल अनाउंसमेंट और भी है। आई डोंट नो हाउ मेनी बुक्स you got suggested by other teachers.
but I will ask you to buy book. So the book what you need to have is Truman's Elementary Biology Volume 1. ठीक है, कौन सा बुक खरीदना है आपको? ट्रूमैन पब्लिकेशन का एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आज टाइम कम है तो मैं क्लास यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। ओनली वी हैव 1 मिनट, सो टुमारो वी विल डिस्कस फर्दर, एंड बिकॉज इट्स अ कोरोना टाइम, सो स्टे एट होम, बी सेफ, ईट वेल, बी हेल्दी एंड स्टडी वेल। या बुक नेम जो है वो लिख लो एलिमेंट्री बायोलॉजी। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, सो डोंट वरी, आई विल अपडेट इन द ग्रुप। मुझे ग्रुप में मैसेज करो एक बार कि सर सेंड अस द नेम, बुक नेम। ठीक है, मैं उसमें भेज देता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, सुन लो। एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ट्रूमैन पब्लिकेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ गूगल में दिखा देता हूँ ना, सब कुछ तो दिखता है। आई विल शो यू एलिमेंट्री बायोलॉजी क्लास 11th images. तो मैं दिखाता हूँ एक बार, 1 मिनट। देख सकते हो, दिस इज द बुक एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1 फॉर क्लास 11। दिखा सबको? दिस इज द बुक, लेटेस्ट जो एडिशन है वो लेना। दिख गया ना सबको? चलो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा एक बार। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।